Hello students, welcome to Economics Fundamentals. In today's class, we are going to discuss the third type of frequency diagram. It has the three components like the histogram and the frequency polygon and the ogives. So here we are dealing with a frequency diagram, and under the frequency diagram first we will deal with histogram. Histogram is a two-dimensional diagram, and please remember that histogram cannot be constructed with the discrete variable. It can only be constructed if the variables are continuous in nature. Okay. So it is a set of rectangle with base as the intervals. So intervals is given at the base, and between class boundaries जो x axis पर हम measure करते हैं class boundaries को, and width area proportional to the class frequency. उसकी जो width है उसमें हम लेते हैं class frequency. जैसे ये एक टेबल हमारे पास है, मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. 0 to 10 में 3, 10 to 24, 20 to 38, 30 to 40, 10, 40 to 53 and 50 to 62. These are the marks of the students secured in a particular test. Now we are constructing the histogram. Histogram on OX axis we measure the marks, and OY axis we measure the number of student. So here we measure number of students, and here we are measuring the marks. Okay. So 0 to 10 there are 3 students. Suppose we give the interval 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 as well. So there are 3 students who secured 0 to 10 marks. So 3 will be lying some here. Yes. Then we can draw the bars like we have drawn in the bar diagram, but only difference is that as it is a two-dimensional diagram, so it will not give the gap in between two bars. There was equidistance and equiwidth, but here there is no distance. So 10 to 20, that is why I have told you that histogram is a two-dimensional diagram, and it can only be constructed if the variables are continuous. So it is continuous 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, continuous series का एग्जाम्पल है. तो 10 to 20 के बीच में है हमारे 4, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे, 4 तक ले जाएंगे और ये 20 पे आ जाएगा. उसके बाद है 20 to 30 है 8, तो ये है हमारा 8. इस लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे, दिस इज 8. Okay, then 30 to 40 it is 10, 30 to 40 it is 10. Okay, then 40 to 50 it is 3, 3 will be here like this, 3, same. Then 50 to 60 it is 2. It is the example of histogram. Okay, it's very simple. You must have aware with the concept of histogram as well during your previous classes, class 9th and 10th. You must have drawn these type of histogram over there. Then we came over the frequency polygon. So to construct the frequency polygon is very easy. We start from here and we simply joins the midpoints for all the bars. Okay, so by joining all the midpoints we can draw the frequency polygon. So here is the midpoints, here is the midpoints, here is the midpoint, here is the midpoint.
So we can start from here, then we join this midpoint as well, then we join this midpoint. We can use the scale. I am drawing from hand, so it may not be a proper in the form, but you can use scale. स्केल की मदद से आप इसे सीधे जो है ज्वाइन करेंगे, पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। केवल हम सभी बार्स के मिड पॉइंट को मिला देते हैं, तो ये हमारा जो बन जाता है वो हो जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, देखिए इसमें एक बात समझने वाली है, कई बार क्वेश्चन आता है कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो डायरेक्ट बनाइए विदाउट द हिस्टोग्राम। तब आप क्या करेंगे, तब यू हैव टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है, मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सो 10 डिवाइडेड बाई 2 इट बिकम्स 5, 30 divided by 2 it becomes 15, then it becomes 25, then it becomes 35, then it becomes 45, then it becomes 55. So then we can write these value on OX axis, 5, 15, here is the 5, you can easily understand this। आप ये देखेंगे पॉइंट हमने बीच में लिया है तो ये 5 है, यहाँ बीच में लिया है ये 15 है, यहाँ बीच में लिया है ये 25 है, एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन। तो हमें हिस्टोग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को जो है ओजिव के बारे में थोड़ा बताऊंगा। So students, now we are discussing the ogives, or what is called as the cumulative frequency curve. The concept of cumulative frequency have been cleared already among you in your previous classes as well. Cumulative frequency में अब आपके पास सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होगा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 0 to 20 में 6 स्टूडेंट्स है, 20 to 40 5 स्टूडेंट्स है, 40 to 60 33 स्टूडेंट्स, 60 to 80 14 स्टूडेंट्स एंड 80 to 100 है 6 स्टूडेंट्स। ये फ्रीक्वेंसी है ना। इसमें हम क्या करते हैं, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम बना देते हैं OY एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, और जो इंटरवल्स हैं वो हम प्लॉट कर देते हैं OX एक्सिस पर, और उससे जो हमारा जो ग्राफ बनकर आता है उसी को हम ओजिव कहते हैं। तो ये दो तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, लेस देन और मोर देन। आप यहाँ पर देखेंगे 0 से 20 की ये रेंज है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 20 एक्सक्लूड है क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं, 20 यहाँ पर इंक्लूड है। तो लेस देन 20 हम यहाँ लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 6। तो लेस देन CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई हैव रिटन हियर इन द शॉर्ट फॉर्म। CF मैंने लिखा है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। तो ये 6 है, 6 लिख दिया मैंने। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेस देन 40। अब लेस देन 40 में ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, तो 6 + 5 ये क्या हो गया, 11 हो गया। 6 + 5 ये दोनों इसमें इंक्लूड हैं। फिर लेस देन 60 में हम क्या करेंगे, ये तीनों इंक्लूड करेंगे, 6 + 5 + 33, तो ये 44 आ गया। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है लेस देन 80। लेस देन 80 में फिर हम ये वाला भी इंक्लूड कर लेंगे। सो 44 में 14 और ऐड कर दीजिए तो 58 हो गया। उसके बाद लेस देन 100 में हम क्या करेंगे, उस 58 में ये भी ऐड करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन का मतलब है पहले 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और फ्रीक्वेंसी को उल्टा लिखेंगे, क्योंकि 0 से बड़े हैं ये सारे, तो 64 इधर आ जाएगा। मोर देन 0 में 64। अब क्या हो जाएगा, मोर देन 20, तो इस 64 में से ये 6 माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितना बचा आपका, ये बचा 58,
है ना। 64 में से 6 माइनस हो गया, 58 बचा। उसके बाद आपका आ गया मोर देन 40। सो मोर देन 40 में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 6 और 5 11। अब 11 इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 53, किस में से, टोटल में से। उसके बाद हो गया मोर देन 60, मोर देन 60। अब मोर देन 60 में ये टोटल कितना हो गया, 33 हो गया। यानी इसको सबको आप जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 11 और 33 कितना हो गया, 44। 44 जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आएगा 20। उसके बाद आप हो जाएगा मोर देन 80। मोर देन 80 में ये आपका 44 में 6 और जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया इसमें आपका जो है 6 और 5 11, 11 और 33 44, 44 और 14 58, 58 इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा 6। इसे आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को आप उल्टा जोड़ते चले जाइए। यहाँ 6 में 14 जोड़ देंगे 20, 20 में 33 जोड़ेंगे 53, 53 में 5 जोड़ेंगे 58, 58 में 6 जोड़ेंगे 64। दोनों तरीके हैं। तो ये लेस देन फ्रीक्वेंसी, ये मोर देन फ्रीक्वेंसी है। अब दोनों को आपने निकाल लिया, अब इनके ऑजिव बनाने, यानी एक लाइन ग्राफ बना देना है प्लॉट करते हुए। तो आप ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये चाहे वो लोअर लिमिट हो या अपर लिमिट है, जो भी हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमने लोअर लिमिट ली है सबकी और यहाँ पर हमने ली है अपर लिमिट। लेस देन में अपर लिमिट लेते हैं, इसमें लोअर लिमिट लेते हैं। तो इसको हमने कहाँ प्लॉट कर दिया है, ओ एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर दिया है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमने कहाँ प्लॉट की है, ओ वाई एक्सिस पर। तो ये लेस देन के लिए है, लेस देन 20, ये 20 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 6। फिर ये 40 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 11। फिर ये 60 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 44। ये 80 हुआ, इसकी वैल्यू हुई यहाँ पर देखिए 58। ये 100 हुआ, यहाँ पर इसकी वैल्यू हुई 64। ये, और जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा जो ओजिव आएगा, दिस इज कॉल्ड द लेस देन ओजिव कर्व। ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से हम मोर देन ओजिव भी ड्रॉ कर सकते हैं। मोर देन के लिए मोर देन 0, तो यहाँ पर हम देखेंगे मोर देन 0, 0 पे 64 आ गया। फिर है नेक्स्ट आपका मोर देन 20, सो 20 पे आप देखेंगे तो ये हुआ 58। उसके बाद मोर देन 40 है तो ये हुआ 53। फिर है मोर देन 60 तो ये हुआ 20। फिर है मोर देन 80 तो ये हुआ 6 और लास्ट में 100 पे चला गया, जो 0 रहेगा। ये इस तरह से दोनों जो ग्राफ निकल के आते हैं, ये हमारा लेस देन ओजिव है और ये हमारा मोर देन ओजिव है। अब इसमें एक और बात है बताने वाली कि मीडियन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली। जो मीन मोड मीडियन आपने सुना है, तो मीडियन को हम किस तरह, दो तरीके हैं, या तो हम लेस देन ओजिव मोर देन ओजिव एक साथ बना दें, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो मीडियन होगा। दूसरा तरीका है कि हम जो n/2 पहले कैलकुलेट करेंगे फॉर मीडियन। फर्स्ट क्या करेंगे, n/2। n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 64 हैं, है ना। जो फ्रीक्वेंसी है टोटल कितनी है, 64 है। सो 64 डिवाइडेड बाई 2 इट बिकम्स 32। 32 को हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं और 32 से एक सीधी लाइन स्केल से ओजिव की तरफ ड्रॉ करते हैं और वहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ओ एक्स एक्सिस की तरफ लेकर आते हैं, जो ये 52.72 पर आकर इसे इंटरसेक्ट करता है। ये ही हमारा मीडियन है। सिमिलरली मोर देन ओजिव में भी हम मीडियन निकाल सकते हैं, वही n/2 करके। ठीक है, तो 64/2 इट बिकम्स 32। 32 को यहाँ पर प्लॉट करिए, फिर ये एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए कर्व की तरफ और उसके बाद कर्व से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ओ एक्स एक्सिस पर। ये 52.7 जो है ये मीडियन होगा। इस तरीके से हम मीडियन जो है ग्राफिकली निकाल सकते हैं। एक बात मैं आपको बतानी छूट गई है बच्चों, कि हिस्टोग्राम की मदद से हम
मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से हम ओजिव की मदद से मीडियन निकाल सकते हैं, उसी तरीके से हिस्टोग्राम की मदद से हम मोड निकाल सकते हैं। ये मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ हिस्टोग्राम का। सपोज़ ये एक हिस्टोग्राम है, एक क्लास इंटरवल है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ओके, ये मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या है, हम इसका मोड अगर निकालना चाहते हैं तो इसके जो राइट कॉर्नर है, सबसे बड़े वाला जो बार होता है, उसी के राइट कॉर्नर से और लेफ़्ट कॉर्नर से, और जो बराबर वाला बार है उसके राइट और लेफ़्ट को आप सीधी एक लाइन मिला देंगे इस तरीके से। ये जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो लगभग 25 इसका जो है वो मोड होगा। सो इस तरीके से ग्राफिकली आप मोड भी निकाल सकते हैं। मोड हम हिस्टोग्राम की मदद से निकालते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो बार होता है वही मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मॉडल क्लास क्या होती है, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स हैव अकर्ड, है ना। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ होती है वही मॉडल क्लास है। तो उसमें मॉडल वैल्यू आप इसके जो राइट कॉर्नर पे एक पॉइंट लेकर के, लेफ़्ट कॉर्नर पे पॉइंट लेकर के, और इधर के लेफ़्ट से मैच कर देंगे, इधर के राइट से मैच कर देंगे। जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से परपेंडिकुलर स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और वो मॉडल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम हिस्टोग्राम से मोड कैलकुलेट कर सकते हैं और ओजिव से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। Presentation of data mainly of two types, tabular presentation and diagrammatic presentation। तो tabular हमने किया, फिर टेबल के पार्ट्स डिस्कस किए, उसके बाद हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में ज्योमेट्रिक डायग्राम है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ है और फ्रीक्वेंसी डायग्राम है। तो आज हम लोग ये फ्रीक्वेंसी डायग्राम कर रहे थे। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग, एंड प्लीज़ डू प्रैक्टिस more and more, and please watch our channel as much as possible. Thank you. Have a nice day.